रोमांचक ग्रुप मैचेस के बाद डीपी वर्ल्ड ILT20 पहुंच चुका है निर्णायक मोड़ पे, यानी स्वादिष्ट स्टार्टर्स के बाद और भी लजीज मेन कोर्स। दुबई कैपिटल्स ने देखे कई उतार चढ़ाव, लेकिन आखिर के कुछ मैचेस में उन्होंने चखा जीत का मीठा स्वाद और पहुंच गए प्लेऑफ्स में। इस सफलता के पीछे मुख्य कारण था सिकंदर रजा और उनके जादुई कारनामे। और ये 6 रन मिलते हुए सिकंदर रजा, इनकी रजा कुछ और ही थी, क्योंकि मुकाबला जिता दिया सिकंदर रजा ने। दूसरी ओर अबू धाबी नाइट राइडर्स का ये सीजन रहा कभी नरम तो कभी गरम। 2 लगातार हार के बाद इस टीम को T20 के 2 बड़े सितारों सुनील नारायण और जेसन रॉय से काफी उम्मीदें हैं। आज की शाम फिर होगा एक जबरदस्त मुकाबला। किसकी होगी नैया पार और कौन होगा टूर्नामेंट से बाहर? हाँ जी, देखिए आज से ना एक नए लेवल की शुरुआत होगी है। दिस लेवल इज कॉल्ड लेवल प्लेऑफ्स और पहला एलिमिनेटर आज आपके सामने जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में अबू धाबी नाइट राइडर्स टेकिंग ऑन द दुबई कैपिटल्स। हाँ जी, आ गए दोस्त। हाँ देखो, अलग ही माहौल है जब प्लेऑफ्स आते हैं ना सामने। इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेकिंग ऑन ईच अदर और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ कोर्स फाइटिंग फॉर व्हाट, फॉर दैट टाइटल। ट्रॉफी वहां पे आपको थोड़ी देर में दिखेगी। यहाँ पे जायद क्रिकेट स्टेडियम में आज मुकाबला शुरू होने वाला है और पहला एलिमिनेटर आज खेला जाएगा, जिसके ऑफ कोर्स विनर्स विल प्ले ऑन द सेकंड क्वालिफायर, द सेकंड एलिमिनेटर ऑन द 15th of Feb. But before that, let's head for the all important toast with Natalie Germanos. First of our playoff matches in the DP World ILT20, and the stakes couldn't be higher because it is a knockout game. For the toss, we've got the match referee Simon Taufel, captain of Dubai Capitals Sam Billings, and of course the captain of Abu Dhabi Night Riders Sunil Narayan. Sunil Narayan is the home captain, so he will take the coin. Tails, please. Capitals are called tails, and it is a head. It's a heads. Bowl. Good ball. Thanks. Sunil, what are you going to do and why? We're going to have a bowl. I think it's easier to bowl first than trying to defend. So hopefully we could go there and pick up a few wickets in the first 6 and try to carry on the momentum. Been a bit of rain about, so how's the preparations gone? I think rest was probably best suited. I think you rest, reflect, and try to come up with ideas of how to combat the team. In terms of looking at how you played in the previous game against the Dubai Capitals at this venue, you won by 29 runs. What do you take from that game? I think it started with early wickets again. So I think if we could continue that, and hopefully we get those things and keep them mild in the power play, it will set us up for the middle and back end. Good luck. Play well. Thanks. Sam, you're going to have a bat first. How do you feel about that? Yeah, we were going to bat first anyway. So we just felt the other night here at this venue that it actually got harder and harder to bat. So hopefully we can get a good score on the board and defend it. Knockout game. So how does it change your preparations from a league game? For us, to be honest, it doesn't change it at all because we've been playing knockout cricket for the last couple of games. So yeah, very much the same. Our process has always been one game at a time and see where it gets us. And look, we've started to get a bit of momentum as a team and some rhythm as a team as well in terms of the different roles where people are batting. So yeah, really happy with how it's been going. What do you think maybe is that element that will set you apart today? I don't think it's any specific element. I think the trends throughout the tournament, they've been there to clearly see for both teams. So it's about getting a good platform with the bat and then building upon that. And partnerships are so key in this format of the game, but they've kind of really been exaggerated in this tournament, we feel. So hopefully, like I said, we can get a good score on the board and then defend it. Enjoy. Thank you. So that's it then. The news from the middle is that the Abu Dhabi Night Riders have won the toss and they say they're going to have a bowl first. जी, वहाँ पे पहली बाजी गई सुनील नारायण और अबू धाबी नाइट राइडर्स की और 60% यहाँ पे विनिंग परसेंटेज है फॉर द टीम दैट इज बॉलिंग फर्स्ट, यानी कि जो चेस करता है यहाँ पे 60% ऑफ द टाइम्स डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2 में बाजी मार के गया है जायद क्रिकेट स्टेडियम पर। लेकिन भाई देखिए, टॉस तो चलो ठीक है, कभी हार कभी जीत वो तो चलते रहती है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना ना वो दम दिखाना होगा इस फील्ड पर। उससे पहले दम नहीं, हम आपके लिए क्या क्या पकवान लाए, बहुत सारे पकवान लाए। स्पेशल डे, स्पेशल शो कमिंग फॉर यू। डीपी वर्ल्ड ILT20 का पहला प्लेऑफ, अबू धाबी नाइट राइडर्स के पास क्या है खास हथियार? दुबई कैपिटल्स कैसे कर सकते हैं उन पे वार? और कैसे जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर बने ग्रुप स्टेजेस के मुकद्दर का सिकंदर?
देखिए, इट्स द लव दैट यू गाइस आर गिविंग अस, उसके बलबूते पे ये टूर्नामेंट इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। पहले 18 मैचों में व्यूअरशिप नंबर्स 16.5 करोड़ वाचिंग डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2, और अब साढ़े 16 करोड़ से अब ये बढ़ जाएगा 20 करोड़। क्यों? दिखाओ जी झलकियां, दो लेजेंड्स को दिखाओ यहाँ पे। आगे जी, बंदे बढ़ गए, बंदे भर भर के आगे। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वीरू भाई, बारिश लाए हो आप? मैं क्या दिल्ली से? यार दिल्ली से मैं ठंड लाया हूँ, बारिश तो नहीं कह सकता, ठंड लाया, क्योंकि बारिश हुई तो उसके बाद यहाँ भी थोड़ी ठंड हो गई। दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मजा आ रहा था, अच्छे वाले बिस्तर में चाय पकौड़े चल रहे थे, लेकिन काम करने के लिए आ गए अबू धाबी। भाजी, एक फील अलग होती है सर प्लेऑफ्स की। आपने इतना खेला हुआ है, यू प्लेड फ्रेंचाइज क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन। इन खिलाड़ियों को इतने टाइम से देख रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है अलग लेवल शुरू हुआ है जी। हाँ बिल्कुल, ये अब ये जानते हैं कि उस दौर पे है टूर्नामेंट की, आपको ये मौका आखिरी मौका है। जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी, जो हारेगी वो वापस जाएगी। तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आ जाता है ये मैचों में, जो नॉकआउट काइंड ऑफ मैचेस होते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि आज वार्म अप भी सारे इंटेंस तरीके से कर रहे हैं, अपने अपने जोनर में लग रहे हैं प्लेयर। तो ये स्वाभाविक है यार, क्योंकि ये जानते हैं कि जो पीछे किया वो कोई याद नहीं रखेगा। अगर आज हारे तो वापस जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये माहौल थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है जब नॉकआउट स्टेज शुरू होती है। अच्छा, आप वैसे जब वहाँ पे दिल्ली में आराम से मैच देख रहे थे, आपने ये रजा साहब का देखा कारनामा? बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी बॉल पे, बट आखिरी बॉल तक जाना नहीं चाहिए था पहली बात, बट आखिरी बॉल पे छक्का मारना भी मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए, मैं कहूँगा। मतलब उस समय तक मैच हार गए थे कि अगर लग गया तो ही जीतेंगे, बट जो कनेक्ट किया सिकंदर ने, और ये पहली बार नहीं किया उन्होंने, ऐसे कई मैचेस जिताए उन्होंने अपने दम पर। लास्ट बॉल पे शायद पहली बार होगा, लेकिन मैचेस बहुत जिताए अपने दम पर सिकंदर रजा ने। अगर दुबई कैपिटल अगर आज इस मुकाम पे पहुंची है तो उसका श्रेय जाता है सिकंदर रजा को। वही सिकंदर रजा यहाँ पे काफी कुछ निर्भर होगा। भज्जी उन पे बल्ले के साथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं स्पिनर्स का बोलबाला बढ़ रहा है। जो 4 ओवर ये डालेंगे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होंगे इनकी टीम के लिए। बिल्कुल, देखिए पिछली बार इस टीम के लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्होंने काम किया था, फिर इन्हीं के लेग स्पिनर जो लोकल दोनों खिलाड़ी हैं उन्होंने काम किया था। तो आज उनके साथ फिर सिकंदर रजा भी है, तो रैंडम ओवर भी है, 16 ओवर है उनके पास। काफी, मैं वो कहूँगा कि स्पिन बहुत इन टीम की ना तगड़ी स्पिन है। और अगर इन्होंने आज चाहे मुझे लगता है 160-70 रन बना दिए प्रेशर वाले मैच में, हमेशा रन्स ऑन द बोर्ड हेल्प्स ऐसा कहते हैं, पर इस पिच के ऊपर डिफेंड किया इन्होंने, वो इन्हीं की बॉलिंग ने सिर्फ करके दिखाया था, उससे पहले हुआ नहीं था। तो अगर वो ये काम दोबारा कर पाए, स्पिन जो है वो हावी हो जाए आज, तो फिर ये मैच ये जरूर जीत सकते हैं। वीरू भाई, अक्सर इस टूर्नामेंट में जब आप थे नहीं यहाँ पे, एक फेज सा बन गया था पहले 6 में, मतलब बल्लेबाज हावी है, लेकिन उसके बाद कमबैक हो रही है 7 to 15 में, गेंदबाज पूरा का पूरा खींच रहा है यहाँ पे, और स्पिन को आप कैसे खेलें उस फेज में बहुत ज्यादा जरूरी। इन दैट सेंस सैम बिलिंग्स जो आते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, जो बल्लेबाजी करते हैं, ये डेविड वलीक ऑफ कोर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिलिंग्स पर बहुत कुछ निर्भर होगा वीरू भाई। नहीं, बिल्कुल, कप्तान भी हैं, और मिडिल ऑर्डर में क्या है कि अगर आप स्पिन थोड़ी अच्छी खेलते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन मैंने देखा कि आमतौर पर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जो एक जगह आकर खेल रहे हैं यहाँ पर, तो वो इंटरनेशनल सभी की स्पिन उतनी जो तकनीक है खेलने के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ, वो कम है, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा जब वो मारने जाते हैं उसमें आउट हो जाते हैं, इसलिए स्पिनर कम बैक करा देते हैं। तो सैम बिलिंग नो डाउट दोनों तरफ खेलते, रिवर्स स्वीप अच्छा मारते हैं, हिट अच्छा मारते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रन बनाने पड़ेंगे। अगर आज कंसिस्टेंट बनाए उन्होंने मिडिल ऑर्डर ने रन, तो जैसा भज्जी ने कहा कि इनकी बॉलिंग में दम कम है कि शायद ये डिफेंड कर सके। ये देखिए यहाँ पे जब चलते हैं तो भाई जबरदस्त तरीके से चलते हैं। 67 of 35 सर, ये था स्पिन का, जब बॉल सीधे आ रही है ऐसे शॉट्स कभी खेले जा रहे हैं। ये आओ जी विकेट पे लगो। नहीं, ये सैम बिलिंग जैसे वीरू ने कहा कि ये इनकंसिस्टेंट है थोड़े, पर जिस दिन चलते हैं ना, ये फिर AB डिविलियर की तरह चलते हैं, मैच को वन साइडेड अपनी तरफ कर देते हैं। पिछले मैच से इनको सीख लेनी होगी कि पिछले मैच में जब वो प्लेटफॉर्म मिला 90 या 100 रन पे एक आउट था, उसके बाद ये पूरी टीम लड़खड़ा गई, नीचे की तरफ आ गई, टोटल कुल मिला के 156 ही रन बनाए। तो वो जो अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए फिर तो 200 लगाना चाहिए। तो आज तो खैर ये पहले बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, बट जब चेज करने के टाइम पे भी सैम बिलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा कि इनके प्रमुख बल्लेबाज जो है वो यही हैं। जिस दिन ये खेलते हैं, रजा तो वो उनके साथ जो उस दिन पारी खेली वो बहुत बढ़िया थी जी, सिंगल डबल के साथ, बट ये चौका छक्का लगाते हैं, इनको वो गेम को बढ़ाना आता है तेजी से आगे। तो आज बहुत कुछ इनके ऊपर निर्भर रहेगा कि सैम बिलिंग कैसी बल्लेबाजी करते हैं। पिच पर भाई आज कौन सी पिच हमारे सामने होगी इस फर्स्ट एलिमिनेटर के लिए, उसके लिए लेट्स हेड टू द पिच रिपोर्ट निखिल चोपड़ा और वकार यूनुस के साथ। एलिमिनेटर मुकाबला डीपी वर्ल्ड ILT20 अबू धाबी का यह खूबसूरत मैदान दोनों तरफ से खुला हुआ, और मेरे साथ दी ओरिजिनल
द टो क्रशर वकार यूनिस। थैंक यू निखिल। वकार भाई, कल थोड़ी बारिश हुई, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा विकेट पे? थोड़ी सी ज्यादा हुई बारिश निखिल, टू बी ऑनेस्ट। और जो फर्क जो दिखेगा ना, जो मुझे दिख रहा है, वो ये है कि अगर जरा स्पाइडर कैमरे को थोड़ा पीछे लेके जाइए, थोड़ा पीछे खींचिए जरा, तो आप देखेंगे कि हल्की सी शीन दिखना शुरू होगी। काफी मैचेस खेले गए हैं स्क्वायर के ऊपर, तो अब वो जो घास है वो भी उड़ती हुई जा रही है। अब उतनी घास दिख नहीं रही जो हमें पहले मैचेस में दिखी। स्क्वायर अभी भी हरा है, लेकिन जो पिच है ना वो उतनी घास वाली नहीं रही। सो तो आई थिंक थोड़ा सा बैटिंग थोड़ा मुश्किल जरूर होगी। और ये शीन जो है, ये चमक वकार भाई के शूज के लिए नहीं है, क्योंकि यही एक मैदान है तीनों वेन्यूज में जहां सबसे ज्यादा छक्के भी लगे हैं। यू डोंट वांट टू बी बॉलर। अगर बॉलर हो तो इनकार कर दो खेलने से, क्योंकि यू नो ना सिर्फ बल्कि इस टूर्नामेंट में ओवरऑल जो अबू धाबी का ग्राउंड है ना, और जो पिच जो है ये ऐसी सपाट होती है कि यहाँ पे बॉलिंग के लिए मार्जिन बहुत कम होता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि छक्के लगते हैं, क्योंकि हवा भी चलती है थोड़ी, और बैट्समैन भी आजकल सियाने हैं, वो देखते हैं कि हवा किस तरफ है, उसी तरफ है चलाओ। तो 120 छक्के जो लगे हैं, लेकिन कल आप जैसे कह रहे हैं काफी बारिश हुई, वो चमक की बात है। आज बल्ला चमकेगा या बॉल देखिए, आज किस्मत चमकेगी, मैं समझता हूँ। वो इसलिए किस्मत चमकेगी कि कोई एक टीम जाएगी घर आज के बाद, तो इसलिए किस्मत का खेल है। आपको दिलेरी से खेलना होगा। T20 के लिए दिलेरी का आई डोंट थिंक विकेट इतना कोई ज्यादा बड़ा पार्ट प्ले करेगी बैटिंग बॉलिंग के लिए। इट्स जस्ट हाउ यू प्ले, जिस तरीके से जिस माइंडसेट आप आएंगे उसी तरह का रिजल्ट पाएंगे। दिलेरी से खेलिएगा अगर एलिमिनेटर जीतना है तो। देखिए जी, दिलेरी तो जरूरी है। अगर वो ट्रॉफी को आपने पकड़ना है तो दिलेरी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिलाते हैं, ये जो यूएई है, इट्स अ कल्चरल मेल्टिंग पॉट। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। तो साफ सी बात है, हमारे देश से भी, भारत से इतने सारे लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, एंड फॉर देम एक नई एडिशन हुई है। एज वी गोइंग इनटू द ब्रेक, यू टेक अ लुक एट दैट न्यू एडिशन। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। We are at the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. What's really remarkable that this is the first stone temple in all of the Middle East and the largest in Western Asia. More than just a spiritual temple, this is a mandir which has facilities that will serve the community. We've created a small monument which again elaborates on harmony. So when you look through that monument, you see only the temple, and the temple is again a symbol of harmony. So this is a project that's been built by the community for the community, and it will be a place where everyone will continue to congregate, and that's why it's fast becoming known as the spiritual oasis of global harmony. क्रिकेट सफारी में आपका स्वागत है। एलिमिनेटर 1 आपके सामने कुछ ही देर में जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में दुबई कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। और ये टीम को देखिए तो 4 स्पिनर्स हैं, 16 ओवर यहाँ पे है। लेकिन बल्लेबाजी की बात करेंगे, सैम बिलिंग्स है, सिकंदर रजा है, दसुन शानगा ने पिछले मुकाबले में एक अच्छा कैमियो प्ले किया था यहाँ पे। टॉम बैंटन एंड मैक्स होल्डन ने एक अच्छी साझेदारी दिखाई थी पिछले मुकाबले में। वहीं अबू धाबी नाइट राइडर्स की बात करें, नो इमाद वसीम चले गए हैं। तो स्पिन की अगर आप बात करें तो पूरा का पूरा दारोमदार आने वाला है सुनील नारायण पर। डेविड विली भी हैं, एंड साथ ही साथ फेबियन एलन हैं जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं, साथ साथ थोड़ी गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन बातचीत अब अबू धाबी नाइट राइडर्स की होने वाली है, और बातचीत होने वाली है उनके कप्तान सुनील नारायण की। भजी, इमाद वसीम है नहीं इस टूर्नामेंट में, देखा है पहले 6 ओवर में गेंदबाजी करने आते ही नहीं है। आज आपको लग रहा है पर्चा कटेगा, पहले 6 में गेंदबाजी करनी चाहिए। देखिए, कप्तान वो होता है जो सामने से आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब टीम को ज़रूरत है तब गेंदबाजी करने आए, बल्लेबाजी करने आए। बट हमने ये सुनील नारायण को अक्सर देखा है कि 6 ओवर के बाद गेंदबाजी करने आते हैं, और इनका मुझे लगता है कि जो रोल है ना वो आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इमाद चले गए हैं। वो पहले 6 में करते थे बॉलिंग, और इनकी टीम पहले 6 में रन बहुत खाती है। तो अगर विकेट चटकानी है तो ये सबसे प्रमुख दावेदार हैं जो विकेट ले सकते हैं। हालांकि अभी भी देखिए 9 मैचों में 7 विकेट लिए, जो कि इनके कद काट के हिसाब से वीरू बहुत कम विकेट है, क्योंकि इनके 9 मैच में तो 15 विकेट होने चाहिए थे। मैं विकेट ठीक है उनको कम मिले, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट है उससे काफी इंप्रेसिव। 5.91, 6 रन से कम देते हैं वो अपने ओवरों में, लेकिन उससे क्या फायदा नहीं मिलता टीम को फायदा कम मिलता है जब आपका गेंदबाज आपको विकेट लेके दे, क्योंकि फिर आपका टोटल जो है ना वो 160 की जगह 130, 140 ऐसा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सुनील नारायण
विकेट लेने पे ध्यान दे, ना कि इकोनॉमिकल गेंदबाजी पे, क्योंकि वो तो अगर विकेट लोगे वैसे ही हो जाना ही। तो अगर विकेट लेंगे तो शायद उनकी टीम को और बेहतर फायदा होगा। आना चाहिए इनको, पावर प्ले में आना चाहिए, गेंदबाजी करें, पहले एक आध ओवर अपने आप को देखें, क्योंकि कोई विकेट ले सकता है तो वो ये ले सकते हैं, तो इनको बॉलिंग करनी चाहिए पावर प्ले में। डर भी तो है ना, डर के आगे जीत है। हाँ क्या बात है सर। वैसे वीरू भाई वहां पे इनके एक और एडिशन हुई, अच्छी एडिशन हुई जेसन रॉय की, एंड आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, पर मुझे बड़ा याद आता है आपका जो एक इंटेंट है खेलने का, आते ही है वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, क्लियर है बड़ी थिंकिंग में। बट वही है, इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट है तो सोचने का टाइम भी नहीं है ना, आपको क्लियर थिंकिंग से खेलना पड़ेगा। ये बॉल मैं मार सकता हूँ, ये छोड़ सकता हूँ, ये रोक सकता हूँ, सिंपल। जितना बैटिंग को सिंपल करोगे उतना आसान हो जाता है। उनका एक्सपीरियंस T20 का बहुत है। देखिए 339 मैचों में कितने रन, 88,824 रन बना, 88,000 यार, इतने तो मेरी गाड़ी की है, आंकड़े गलत तो नहीं है, इतनी तो मेरी गाड़ी भी नहीं चली है। हम तीनों की मिला के नहीं चली है, हम तीनों की मिला के। मेरी साइकिल है, मैं भी उस साइड पे आया नहीं हूँ, मैं भी है तो गाड़ी ना साइकिल। बट मैं कह रहा हूँ कि क्लियर थिंकिंग हो तो बहुत बढ़िया है ओपनर के लिए। बट मैं चाहूंगा कि जब ये 6 ओवर के बाद खेलते हैं ना, रुकें। अगर 6 ओवर पावर प्ले निकल जाता है तो उसके बाद रुकें कम से कम 10-12 ओवर तक, तब इनकी टीम को फायदा होगा। क्योंकि कोई भी ओपनर, चाहे जेसन रॉय हो, कितने भी बड़े ओपनर, अगर 6 ओवरों में अगर वो 40 रन बना के या 60 रन बना के अपनी टीम के लिए आउट भी हो जाता है ना, तो उसकी टीम को फायदा नहीं होता। फायदा जब भी मिलता है जब वो लंबी पारी खेलता है। भाई वहां पे अगर आप बात करें दुबई कैपिटल्स के, तो यहाँ पे मैच विनर्स हमने आपको दिखाए सुनील नारायण एंड जेसन रॉय, लेकिन दुबई कैपिटल के अगर एक मैच विनर है, और भाई तगड़े मैच विनर चले जा रहे हैं अब तक, वो है सिकंदर रजा। हाँ जी, सिकंदर रजा की बातचीत यहाँ पे होगी भजी। ही इज बीन ब्रिलियंट इन दिस टूर्नामेंट एंड येट अगेन सर, जब हमारे साथ बातचीत भी करने आए, द वे ही टॉक्स, जो सोचने का तरीका है, वेरी क्लियर इन द वे ही टॉक्स आल्सो। सुलझा बंदा है, क्योंकि वो उसकी गेम में भी नजर आता है। जब वो गेंदबाजी करने आते हैं वो पता है क्या करना है, अपने जोन में रह के काम करता है, और बल्लेबाजी में भी वो जिम्मेदारी के साथ खेलता है। जब बल्लेबाजी करने आता है बंदे को पता है क्या रिक्वायर्ड रेट है, उसके लिहाज से बल्लेबाजी करता है। ये देखिए जो लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, उस समय उस मैच में मेरे ख्याल पहले 15 या 16 बॉलों में इनके 12-13 ही रन थे, बल्ले पे बॉल लग नहीं रहा था। बट जीत उसकी होती जो आखिरी तक लड़ता रहता है, खेलता रहता है। ये बंदा खेलता रहा, चाहे फॉर्म लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी। फॉर्म कब आती है वापस? जब आप अंदर रहिए, आउट होके बाहर आके अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। तो ये वहाँ रहते हैं, मिडिल में टाइम स्पेंड करते हैं, मेहनती खिलाड़ी है, और जो इन्होंने किया इस टूर्नामेंट में काबिल तारीफ बात है। देखिए बहुत से यंगस्टर को सीखना चाहिए कि कैसे जीत होती है, डरना नहीं है परेशानियों से, उससे लड़ के आगे उभरना है, वो ये करके दिखाते हैं। आई थिंक इंटरनेशनल खिलाड़ी ना, जिम्बाब्वे के लिए बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ब्रिलियंट, और जिम्बाब्वे के लिए बहुत बढ़िया खेले हैं, बहुत सारी लीग्स खेलते हैं। प्लस जो यूएई के लोकल प्लेयर है ना, उनको सीखना चाहिए सिकंदर रजा से, तब वो इनसे सीखे। यही तो फायदा है ना यूएई लीग का। क्यों डीपी वर्ल्ड ILT20 का क्या फायदा? जो लोकल खिलाड़ी है यूएई के, उनको इंटरनेशनल खिलाड़ियों से सीखने को मिलेगा। लोकल के साथ साथ मुझे लगता है वीरू, कोई बड़े बड़े खिलाड़ी जो इस लीग में, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है ना, उनकी कमिटमेंट भी ऐसी नहीं थी जैसी इनकी कमिटमेंट है, इसलिए ऐसी जैसी कमिटमेंट होनी चाहिए। सर वेरी क्विकली प्रेडिक्शंस, जस्ट वेरी क्विकली, 5 सेकंड है। एडी भाई छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।